So, hello everyone. Today we have Dr. Atit here. He is a professor in Mexico. En el cristalino para obtener aplicación de optoelectrónica. काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर इंडिया से किसी को मेक्सिको में पढ़ने के लिए जाना है, चाहे वो मास्टर्स हो, अंडरग्रेड हो, हाउ इज़ द प्रोसेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एंड वाई आपको मेक्सिको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेक्सिको से यूएस इलीगल इमिग्रेशन होती है, पर शायद आपको ये बात ना पता हो कि काफ़ी लोग यूएस से भी मेक्सिको जाते हैं एंड दैट इज़ वेरी ह्यूज नंबर एज वेल. तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी मेक्सिको में बिल्कुल भी नहीं है. वी विल बी लर्निंग ऑल दैट फ्रॉम डॉक्टर दत्त. सो हाई डॉक्टर दत्त, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, Harnoor. How are you? So my full name is Atit Dutt, and thanks for having me here. Actually, I think it's a great opportunity कि मैं अपना experience जो भी हुआ है past में I can share with you. Actually, you're doing quite a good work because you're giving motivation to many students in India. Actually, so let's start with the introduction. I am from basically from Himachal Pradesh. I did my schooling there. Then I went to Punjab for my bachelor studies. Basically, I'm engineer in electronics and communication. Then I moved to Vellore Institute of Technology, VIT, for masters in nanotechnology. And then there is a program that is semester abroad program. And I think for more than 9 grades, they give like an opportunity. You can go outside of India for your project work during masters. So I got that opportunity and I came to Mexico. So they were giving me the fundings for the flight tickets. Mexico was paying for my stay in Mexico, for example. And I came to one of government institutes in Mexico, that's Sinvestab. So I did my project work here under one of the Japanese professor. And then I like the country and especially the professor I was working with. He's a nice person, a great professor, great researcher. So he invited me again for the PhD work. I came back to Mexico in 2012 for my PhD, and now I am here. Then I did my postdoc after PhD, and I got one of the opportunities in UNAM, that is the National Autonomous University of Mexico. So I started my career as a researcher there. Now I'm a full-time researcher in UNAM. वाह, तो आपको वीआईटी से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली कि रिसर्च कर पाओ आप. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आप अपने रिसर्च की मेक्सिको में? That is Sinvestab. That's one of the research center of National Polytechnic Institute in Mexico. Sinvestab stands for Centro de Investigación Estudios Avanzados in Spanish. Yeah, so that's a research center of National Polytechnic Institute in Mexico. Yeah. क्या बात है. एंड अगर आपको पता नहीं है, उनाम इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको. एंड किस मेजर्स में ये बेस्ट है, अगर आप डिस्क्राइब करना चाहोगे? Sure, UNAM right now in the QS World University Ranking, the overall university, I think it is at 104 around the globe. And there are different actually majors. For example, UNAM is quite famous for chemistry, for medicine, for engineering branch. And I think the chemistry right now it's in the top 40. Engineering and mining, they're in the top 40 in the world also. Material science, they are in the top 100 right now. And there are different majors actually. So UNAM it's quite a big university. They are in Mexico at different places in the different states. They are also working outside of Mexico, for example, in different countries right now. And the current strength of the students is around 250,000 plus. And the academic staff of UNAM, it's like 42,000, I think, around. And the researchers, all of the schools combined researchers, I think they're like 14,000 or something. वाह, मतलब फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो इज ऑलमोस्ट 5:1, जिसे बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है. क्या बात है. वेरी वेरी इंप्रेसिव. एंड आप बता सकते हो अपनी बैकग्राउंड, बचपन से आपका माइंड आपको कब लगा कि बहुत क्यूरियस है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में जो लोग रिसर्च नहीं करना चाहते, कहा जाता है कि वो क्यूरियस नहीं होते एट एन अर्ली स्टेज. आपके माइंड में वो क्यूरियोसिटी कब आई दैट यू फिगर आउट कि आपको बड़े होके रिसर्च ही करनी है? देखो, एक्चुअली एक स्टेज पे आते हैं बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th, तो सबका हम जब 12th में होते हैं तो हमें इंजीनियरिंग ही करना होता है. हमारा जब उस टाइम पे थे, हम उस जनरेशन में थे, सो द एम वाज टू डू इंजीनियरिंग. आई वेंट टू इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लाइक आई टोल्ड यू. Then in the last year of engineering, we have to do the project. So I got an opportunity to do my project in Siemens. That's one of the best automation countries in the companies actually in the world. तो वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया. And my project was at New Delhi Airport, Terminal 3. So I was working with one of the biggest people in that, for example, field. Germany se log the. They were from Singapore, India, of course, Sri Lanka. Many people were there, different experts. So I learned a lot that time, but I understood that I am not made for this thing. I have to do something out of the box. So then I started actually doing this thing that I want to do something different. And at the same time, I was very
lucky I could say. I got an opportunity to hear one of the seminars about nanotechnology from one of the experts actually in the field, and he told about nanotechnology, how it's making the world better. For example, they are making nanorobots for cancer treatments. They are in the cars, in the batteries, and everything. So I was like, no, I am made for this thing actually. So I was totally shifted from the engineering wing to the research side. That time I was thinking out of the box. Then I started checking, investigating like where I can do something in nanotechnology. And there are many institutes like IITs, IIScs, for example. But for those institutes, sometimes we have to prepare a lot. But I was not ready actually that yeah, I have to give 1 year for the preparation for the entrance exams, for example. So I was like, I have to do continuous thing. So I found BIT, that is one of the best private universities in the India, for example, right now. They're in the top 10 always. और वहां पर एक प्रोग्राम है MTech in nanotechnology. I found that program, I cleared the exam, I went there, and the life changed. Exactly. क्या Yeah. बात है। सो आपने भी सीमेंस जॉब से ट्रांजिशन किया रिसर्च में, आप बता सकते हो क्या चैलेंजेस क्या होते हैं रिसर्च? लोग सोचते हैं कि यार रिसर्च में आपको कुछ भी आप सर्च करके अपने प्रोफेसर को बता दोगे और वो रिसर्च हो जाएगी, बट व्हाट यू एक्चुअली डील विद वो लोग बच्चों को पता ही नहीं होता। सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस एवरी डे? Yeah, challenges. There are quite a few of challenges in the research field. It's not so easy. First of all, the main thing is discipline. We have to be very disciplined, patience, because sometimes research is not like you have to do some kind of experiment and you will get the positive results by the end of the day. No, sometimes, for example, you have to work months and even some years, for example, to get the final result. So that is the main thing. And then the thing is competition, because there are many people working for the same thing, same goal. For example, I'm doing research right now related to solar cells, biosensors, those kind of things. And that thing takes a lot of time. You have to prepare a lot. You have to read a lot. Till day, I have to read like 12 to 13 hours a day, because we have to make sure what's happening around the world. We have to read all the things. क्या हो चुका है अभी तक, क्या बचा है, where we can do something, where we can do something new, for example. What is the novelty of the work? How can I can help the world, for example. तो ये factors हैं. But the conclusion is we have to be in discipline, we have to be patient, and we have to read a lot. We have to work hard. So research is not so easy, but we have to dedicate time to this field actually. Yeah. एंड कैसी डेडलाइंस आपको आती है? मैंने सुना है कि काफ़ी प्रोफेसर में आपको डेडलाइन देते हैं कि आपको एक साल में 2 टॉप जर्नल पे पब्लिकेशन लेके आनी है, इस साल में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पेपर होना ही चाहिए इस डेट तक। तो इतनी सारी डेडलाइंस आती हैं, सो कितना प्रेशर आता है? आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, कितने पेपर लिखने पड़ते हैं साल में? देखिए उसमें भी depends on the field actually, because there are some fields, for example, if you go to nanoelectronics, nanotechnology, in the material science where I am working right now, वहां पर on an average from your field you can easily write like 4 to 5 articles easily per year. Okay, good articles. And there are some people, for example, when they are more experienced, when they have a big group, they have students like PhD students, postdocs, master students, bachelor students, they can go to 9 or 10 articles also. But I know some colleagues, some collaborators, they can even write more than 20 or 30 articles per year. So it depends actually on the branch. And if you take the biological fields, for example, there they take a lot of time because the experiments are quite लॉन्ग उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो वहां पर थोड़ा नंबर्स कम हो जाते हैं ऑफ कोर्स. सो डिपेंड करता है आप किस ब्रांच में काम कर रहे हैं. एंड फॉर एग्जांपल इन माय फील्ड मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी, वहां पर नंबर्स वेरी फ्रॉम 5 to 40 50, इट कुड बी इवन 1 ईयर. तो वहां पे डेडलाइंस ऑफ कोर्स रहती हैं. व्हेन यू आर स्टूडेंट, द मेन थिंग इज, आपका मैंने एक वीडियो देखा कल आईआईटी के बारे में था, रिसर्च के बारे में था, एंड यू आर मेंशनिंग अबाउट द आर्टिकल्स फॉर एग्जांपल. इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर आल्सो. व्हेन वी आर इन पीएचडी, इट डिपेंड्स ऑन द गाइड, वो आपसे क्या मांग रहे हैं. मे बी ही इज मोटिवेटिंग यू टू डू सम गुड वर्क. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके आर्टिकल्स आएंगे. तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप प्रेशराइज ना करें स्टूडेंट्स को. लेट देम डू एट देयर ऑन पेस. दे विल लर्न, दे विल डू सम गुड वर्क, एंड फाइनली दे विल राइट आर्टिकल्स. अगर आप उनको बहुत प्रेशराइज करेंगे तो वो ना काम ढंग से कर पाएंगे, ना वो अच्छा आर्टिकल लिख पाएंगे. द थिंग इज दैट्स काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट. तो वहां पर बहुत जरूरी है कि प्रोफेसर ना प्रेशराइज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इजीली मास्टर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट इन देयर curriculum, for example, they can write easily 8 to 9 articles. Yeah. वेरी इंप्रेसिव यार. तो डिपेंड करता है, बट 12 से 13 घंटे काम करना, इट इज़ वेरी वेरी लाइक इंस्पायरिंग. क्योंकि हम सोचते थे बचपन में कि यार
आईआईटी तक या फिर जेई के बाद 12 जेई तक 12 घंटे काम कर लो, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, बट रियलिटी इज कि देयर इज नो लिमिट टू कितना काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली क्योंकि अभी जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो रिसर्च के, वहां पे कोई लिमिट नहीं रहता। एंड राइट नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन बी हैप्पी इफ यू वर्क आउट अराउंड 8 to 10 hours आल्सो। आप एक वो एवरेज बना सकते हो। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ ईच इन्वेस्टिगेटर। फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग राइट नाउ, if I want to do something out of the box, if I want to change the world, I want to propose some new application, I want to design something new, तो अगर मुझे वो करना है, I have to prepare myself। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, मुझे प्रोजेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो बहुत चीजें हैं वो, फिर आपका टाइम लिमिट खुद इंक्रीज होता रहता है। और अगर आप उस फील्ड में हो, इफ यू आर इनटू इन दैट फील्ड, यू वांट दैट फील्ड, यू लव दैट फील्ड, तो आपको 12-13 घंटे लगता भी नहीं कि कब चलेंगे। Sometimes you are like, no, I don't want to sleep, I don't want to eat, I want to be working here in my lab, you know। तो डिपेंड करता है एक्चुअली। या ऑसम। अब ट्रांजिशन करते हैं योर लाइफ इन मेक्सिको। तो आप इंडिया से मेक्सिको आए। बिफोर वी टॉक अबाउट कि बच्चे कैसे आ सकते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हो मेक्सिको एज ए कंट्री, आपको कैसे वेलकम किया गया, एंड आपको लाइक डू यू फील होम से, कितनी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, सो हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस हियर? राइट, सो मेक्सिको देखिए, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज आई कैन से इन लैटिन अमेरिका। फॉर एग्जांपल मेक्सिको इज ए वेरी नाइस कंट्री। यहाँ पर सब कुछ है, एक वेरिएशन है कल्चर का भी। यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री, वहां पर बहुत गर्म रहता है, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। और सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इवन देयर इज स्नोफॉल आल्सो फॉर एग्जांपल। बट आप जब नीचे जाएंगे साउथ पार्ट ऑफ मेक्सिको सिटी, वहां पे बीच हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव पैसिफिक ओशन, वी हैव दैट ओशन, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस। सो बहुत सुंदर कंट्री है, डेजर्ट्स हैं यहाँ पर। और द मेन थिंग इज इन मेक्सिको, यहाँ पर स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है ये मेनली। तो जब आप आते हैं इंडिया से फॉर एग्जांपल, तो हमें इंग्लिश आती है, ऑफ कोर्स हिंदी आती है, पंजाबी आती है, जो मेन लैंग्वेजेस रहती है नॉर्थ इंडियन। बीइंग नॉर्थ इंडियन, मैं वहां से हूँ, माय एजुकेशन वाज इन पंजाब, सो आई नो पंजाबी आल्सो। सो मैं जब यहाँ पर आया था, तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग स्टेज पे डिफिकल्ट था, बिकॉज जब स्पेनिश में लोग बोलते हैं तो आपको नहीं आता। सो आई थिंक इन माय केस व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम इन 2010, I took like around 1.5 years to properly understand। मुझे फर्स्ट 8 months में समझ आता था कि क्या बोल रहे हैं, what they're speaking about, क्या हो रहा है, but I can't explain them। That was the main problem। So that was like after 1.5 year or something कि मैं उनको बता भी सकता था कि what I want to do, what I want to eat for example। तो वहां पर थोड़ा टाइम लगा ट्रांजिशन में। But the thing is, if you know the local language, it's always easy। आप एक और इंटरव्यू था, I have seen that thing, I think he's a researcher in Mercedes, I think, in Yes. Germany। And even he said that you have to learn German, for example, to be in Germany। तो यहाँ पर भी यही है, if you want to be in these countries, for example, Latin American countries, you have to learn Spanish। क्योंकि आप जब एक बार सीख जाते हो लोकल लैंग्वेज, तो बिहेवियर चेंज होता है, एक इक्वल रिस्पेक्ट आता है, एंड योर लाइफ विल बी वेरी इजी। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, यू कैन ईट वट एवर यू वांट, एंड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, आप लोगों से पूछ सकते हो कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। बिकॉज मेक्सिको में आपने सुना होगा सिक्योरिटी एक बहुत कंसर्न रहता है, एंड दैट्स ट्रू। बट मेक्सिको सिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर पॉपुलेशन इस टाइम 9 मिलियन से ऊपर है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं इस टाइम वर्ल्ड वाइड, सभी यहाँ पर हैं, दे आर ऑल सिचुएटेड हियर। लैटिन अमेरिका के जितने हेड क्वार्टर्स रहते हैं कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला, इवन दे आर ओपनिंग नाउ प्लांट हियर। जितनी बड़ी कंपनीज है सब यहाँ पर हैं। तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बट यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज कि आपको फिर इजी रहता है लाइफ, यू नो। तो ऑफ कोर्स जब मैं आया, थोड़ा टाइम डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, बट एक बार जब लैंग्वेज सीखा, उसके बाद मुझे पता था कि कहाँ में मूव करना है, कहाँ पर पढ़ना है, कहाँ पे खाना जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इजी हो गया। एंड रिगार्डिंग द इंडियन कम्युनिटी, काफी लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ पर टीसीएस कंपनी है, मेक्सिको सिटी से 2 hours देयर इज वन प्लेस केरेतारो, वहां पर बहुत सारे इंडियन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आई थिंक देयर इज वन कॉम्प्लेक्स फुल ऑफ इंडियंस, वहां पूरी बिल्डिंग्स अपार्टमेंट इंडियंस की हैं। एंड नाउ आई हैव हर्ड दैट दे आर ओपनिंग सम स्कूल्स आल्सो फॉर इंडियन पीपल एक्चुअली। वहां पर बहुत इंडियन है। देयर इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ मेक्सिको, दैट इज ग्वादलहारा, वहां पर बहुत इंडियंस हैं। बैंक्स में बहुत लोग आते हैं, एचएसबीसी से आई हर्ड, एरिक्सन से, सोनी एरिक्सन फॉर एग्जांपल, इंटेल के लोग बहुत आते हैं, फ्लेक्सट्रॉनिक्स में बहुत बहुत लोग आते हैं। सो इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी राइट नाउ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, आई विल टेल यू जस्ट सम रफ नंबर्स, आई थिंक दैट टाइम देयर वर लाइक 3 or 4 इंडियन रेस्टोरेंट्स ओवरऑल।
And now in Mexico City, there are more than 25 Indian restaurants in the city itself. Oh. So you can see now how it's growing actually. Every year more Indians are coming now. And the thing is, जैसे आप बता रहे थे, यूएस में लोग जाते हैं, that is one of the best opportunities. But जो लोग नहीं जा पाते और बहुत लोग जाके यहाँ वापस आ रहे हैं, because the life is more calm for saying, means आपके एक्सपीरियंस के साथ you can earn good, और जो आपका एक्सपेंडिचर है that is not so high, you can save a lot. तो लोगों को लगता है यार यहाँ पर लाइफ अच्छी है, सेफ है, कि वह जहाँ पर वो रहते हैं they can maintain, for example, good properties, they can pay high rents, and according to safety point of view also they are quite happy. तो लाइफ अच्छी हो रही है डे बाय डे फॉर इंडियंस, आई वुड से, या। एब्सोल्युटली एग्री। आप यकीन नहीं करोगे, लोग सोचते हैं कि मैक्सिको में क्राइम बहुत ज़्यादा है, पर ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो यूएस में क्राइम ज़्यादा है मैक्सिको से। एग्जैक्टली अगर आप यूएस में भी जाएंगे, न्यूयॉर्क में फॉर एग्जांपल, शिकागो, एंड देयर आर सो मेनी बिग सिटीज, देयर आल्सो पीपल टेल यू डोंट गो टू दैट प्लेस आफ्टर 12 o'clock, आफ्टर 1 o'clock। यहाँ पर भी ऐसा है, डोंट गो टू दैट प्लेस, बिकॉज हर जगह सेफ नहीं है। इंडिया में भी इनफैक्ट ऐसा है। इंडिया में कौन सी चोरी नहीं होती, इंडिया में कौन सी चीजें नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स वो डिफरेंट फेज हैं, डिफरेंट रेट्स हैं। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ड्रग्स का वो रहता है कि वह डर। बट द थिंग इज यू हैव टू नो आपको कहाँ जाना है। मैं अब 13 या 14 साल से मेक्सिको सिटी में हूँ, तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फाइन, एंड आई नो मेनी फ्रेंड्स, दे आर डूइंग क्वाइट गुड एक्चुअली। तो इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दोस थिंग्स, योर लाइफ इज गुड, या। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स के लिए। आपने बताया इतनी सारी कंपनीज है मेक्सिको में, तो अगर एक स्टूडेंट को, जैसे आप मास्टर्स के लिए आए थे, अगर स्टूडेंट को आना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज अ एप्लीकेशन स्टेप, क्या क्या चाहिए मेक्सिको को? सो देखिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं मेक्सिको में। अभी मेक्सिको सिटी के अंदर देर इज UNAM, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैटिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। मेक्सिको में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम। वर्ल्ड वाइड आई टोल्ड यू इट्स एट 104th रैंकिंग। तो उनका थोड़ा क्राइटेरिया केवल डिफरेंट रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। व्हाट दे आर आस्किंग फॉर एग्जांपल राइट नाउ इज द, दे आस्क फॉर द जनरल एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो आपको वो एग्जाम लिखना रहता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंपेयर दैट काइंड ऑफ एग्जाम टू GRE इन द स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्जाम थोड़ा डिफरेंट रहता है। वो थर्मोडायनेमिक्स पूछते हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं, फिजिक्स के ऊपर आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर आते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। मेन वही है। उसके बाद इंग्लिश आती है। यू हैव टू राइट IELTS और TOEFL, वहां पर एक मिनिमम स्कोर्स रहते हैं, वो आपको करना होता है। देन इन मास्टर्स दे आस्क फॉर मिनिमम 8 CGPA आउट ऑफ 10। आई थिंक इन यूएसए में 5 रहता है मैक्सिमम, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 CGPA स्केल रहता है। सो व्हाट दे आस्क इज यू हैव टू हैव मिनिमम 8। अगर आपका 8 से कम है, दे डोंट गिव यू द पोजीशन और स्कॉलरशिप्स। So you have to maintain 8, and 8 according to Mexican scale, not Indian scale. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, because if you come from India, इंडिया में भी different universities हैं. Sometimes we have percentage out of 100, sometimes we have CGPA out of 5, for example, or 10 maybe. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, we have to ask the student, please send you the mark sheets. Then there are some formulas. They convert the Indian scale to the Mexican scale, and then they see if your scale is out of 10, how much it is. For example, if it is less than 8, you're out. If it is more than 8, then they will decide according to the number of vacancies whether you will get the scholarship or not. ठीक है, तो वो different चीजें आती हैं, and then you have to write the project. That is one of the main things for PhD actually, because when you're coming for doctorate studies, you have to write a project, research project. उसको आपको defend करना रहता है in front of your guide, जो आपके proposed guide हैं, और दो commission बैठता है वहां पर। So they will ask you they will be cross questioning about the project. आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, what's your main aim. They will test your knowledge. आपको वो पता है या नहीं है पता। तो उसके अकॉर्डिंग देन आफ्टर like 4 or 5 steps आपको फिर वो जगह मिलती है। ये हो गया UNAM का। Then there is National Polytechnic Institute. I think they are at 300 something in the ranking now overall world. वो भी मेक्सिको सिटी के अंदर है। They have also different campuses. The main campus is here in Mexico City. वहां पर भी एंट्रेंस है, इंग्लिश टेस्ट, एंड द सेम थिंग इंटरव्यूज। देन देयर आर सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जांपल राइट नाउ देयर इज वन यूनिवर्सिटी, टेक दे मोंटेरी, दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट आल्सो। दे आर एट 148 समथिंग दिस टाइम इन द वर्ल्ड। दैट इज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड एक्चुअली। तो वहां पर आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या पूछते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी जगह पे यही टेंडेंसी है। टेस्ट एक जनरल टेस्ट रहता है, कई बार आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन है, देन यू हैव टू डिफेंड द प्रोजेक्ट। And there are some places, they're in the top 500. There is Universidad de Salle, Anahuac,
दे आर लाइक आल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे आर डूइंग क्वाइट गुड आल्सो, बट उनमें कई बार आपका टेस्ट नहीं मांगते, वहां पर आपका सिर्फ इंग्लिश एग्जाम वो मांगते हैं. You should have high, I think the scores are like more than 7, 6.5 or 7 in IELTS out of 9, and TOEFL maybe 580 or something is the minimum score or something. I'm not sure, but we have to check the rules actually. वो है, and then you have to write the projects. तो वो minimum रहता है, and then you have to approach the guide. Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब है कि आपको आइल्स या टोफल चाहिए, पर आप कह रहे हो मेक्सिको में तो स्पेनिश चलती है, तो ये कैसे? द थिंग इज, देखो यहाँ पर फॉर लिविंग यू हैव टू नो स्पेनिश, बिकॉज कई बार क्लासेस भी स्पेनिश में हो सकती हैं, बट जब आप रिसर्च पे आते हो, गाइड जो है हमेशा इंग्लिश बोलते हैं. व्हाई दे आर आस्किंग इंग्लिश? बिकॉज इफ यू सी द कॉमन लैंग्वेज ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेशन इज इंग्लिश. Nobody is writing articles, scientific articles in good journals, neither in Hindi, nor in Punjabi, nor in Spanish. Everything is English. So of course they have to test the knowledge of the students कि आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख पाओगे, आप इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ पाओगे, आप जो कॉन्फ्रेंस में जाओगे, when you're going for international conferences, can you give your presentations, oral presentations, poster presentation in English? तो एक बेसिक टेस्ट रहता है. And there is one thing I want to add is in Mexico, यूएस की तरह या डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है. What happens is if you go to many other different countries, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है. जी. ठीक है. मेक्सिको में द बेनिफिट इज यू डोंट हैव टू पे एनी ट्यूशन फी. Mexico gives you scholarship. Mexico gives you scholarship for the master students also and for the PhD students. And being on those scholarships, you can live very happily and you can save a lot also. क्या So आपको कुछ पे नहीं करना है. And those scholarships are total tax free. You don't have to pay any taxes. You don't have to pay anything anybody. You just have to pay the rents. और जब आप इंडियन होते तो ऑफ कोर्स आप कई बार खाना बनाना जानते हो. एंड इफ यू कुक योरसेल्फ इन द हाउस, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली ड्यूरिंग योर मास्टर्स एंड पीएचडी. सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एक्चुअली. और जो पोस्ट डॉक्टरेट होता है मेक्सिको में, दोज आर आल्सो वेरी रेप्यूटेड एक्चुअली. बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स है इस टाइम पोस्ट डॉक की भी. For example, there is one program in UNAM that is DIGAPA, that is one of the best scholarships for the postdoctorate students. तो वहां पे बहुत हाई स्कॉलरशिप्स देते हैं वो इस टाइम. सो कंपेयर टू एनी अदर कंट्री आप बहुत ज्यादा सेव भी करते हो. यू आर एट वन द वर्ल्ड बेस्ट प्लेस, वन ऑफ बेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज. अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है और अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है. सो देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस, यू नो. बहुत बढ़िया. तो मतलब मैंने पीएचडी और डॉक्टरेट का तो सुना था, पर मास्टर्स के लिए भी स्कॉलरशिप देना बहुत बड़ी बात है. तो अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स करता है, तो आप एस्टिमेशन बता सकते हो रेंट में 2 साल की मास्टर्स के लिए कितना खर्चा लग सकता है? खर्चा देखिए आपका बेसिकली यू कैन कवर ऑल अदर थिंग्स फ्रॉम योर स्कॉलरशिप. आपका खर्चा जो है आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना ऑलमोस्ट. ठीक है. आपको जो पढ़ना है वहां पर वो फ्री है. जो मैंने उनाम का बताया है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बताया है, दीज आर लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज. वहां पर आपको कुछ नहीं देना है. ठीक है. तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ, आप उसी से जो आपको थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 पेसोस, यहाँ पर जो नेशनल करेंसी है दैट इज पेसोस, मैक्सिकन पेसोस. ठीक है. तो आपका बहुत कम लगता है अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर द एडमिशन प्रोसेस एंड दोस थिंग्स. और उसके बाद अगर आप रेंट पे करेंगे, खाना लेंगे या जो भी टाइप का एक्सपेंडिचर है, एंड इफ यू आर लिविंग ए गुड लाइफ आल्सो, आप कंट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू कॉन्फ्रेंसेस आल्सो, दैट आल्सो यू कैन पे फ्रॉम योर स्कॉलरशिप. आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स आल्सो यू स्टिल हैव सेविंग्स इन योर अकाउंट. सो इन माई केस व्हेन आई केम द फर्स्ट टाइम, वहां पर स्कॉलरशिप बहुत कम मिला मुझे, क्योंकि उस टाइम तो जस्ट एक प्रोजेक्ट स्टे था. तो वो छोटे से अमाउंट में भी आई वाज सेविंग. So you can imagine now in master's full-fledged scholarship, in the PhD full-fledged scholarship, you can save a lot actually. बहुत इम्प्रेसिव. तो मतलब वो आपको स्टाइपेंड देते हैं ताकि आप अपना रेंट, फूड सब कुछ कवर कर पाओ. बहुत बढ़िया. And it depends on the professor also. Sometimes, for example, if you are going to some conferences और अगर उनके पास projects हैं, because we have to write the research grants, for example, तो कई बार we can pay our students also. For example, if they're going to other countries in Europe, in Germany, in the UK, in the States, for example, और जहां भी जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं conferences के लिए, even I can pay my students sometimes. That depends on the project actually. तो मेरे student को just maybe he has to cover his hotel or something, but flights और सब कुछ मैं cover कर रहा हूँ, तो वो भी हम help कर सकते हैं. तो ये रही बात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की. या द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, फॉर एग्जांपल टेक दे मोंटेरेई, that is in the 148 ranking if I am not wrong, but they are among the top 200 I know.
Universidad de Anahuac, Universidad de Salle, ये बहुत अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. वहां पर यस वी हैव टू पे, बट वहां पर भी आफ्टर पेइंग आई थिंक एंड आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप आपका बहुत कम रहता है. मींस यू कैन स्टिल सेव अ लॉट. या बहुत इंप्रेसिव. एंड अगर हम पैसों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप बता सकते हो रिटर्न कितना मिलता है? इवन दो पैसा सब कुछ नहीं है, जो आपको खुद अपने बलबूते पे पढ़ने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट इज ऑलरेडी ए लॉट जो आपने डिस्क्राइब किया. पर फिर भी अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब करता है तो एस्टिमेट एवरेज सैलरीज आप बता सकते हो कितनी होती है? देखिए हर चीज, अब आपने आपने एक भी वीडियो किया था, आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो अर्लियर, कि यूएस में भी इट्स नॉट लाइक कि हर स्टेट का अपना एक वो सेम वो लेवल है. फॉर एग्जांपल मे बी यू आर गेटिंग 80K समवेयर इन द स्टेट्स, और 80K में आप सेव कर रहे हैं, और वही 80K अगर आप कैलिफोर्निया में ले रहे हैं, इट्स लाइक नथिंग, यू वॉन्ट इवन सेव. तो यहाँ पे भी वही है. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इन मेक्सिको राइट नाउ द बेस्ट अर्निंग जॉब्स प्रोफेशंस आर लाइक मेडिसिन फॉर एग्जाम्पल एंड रिसर्च प्रोफेसरशिप फॉर एग्जाम्पल. तो रफ नंबर्स देखिए बहुत डिफरेंट रहता है. अगेन इट्स सो मच डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू गो आउटसाइड ऑफ मेक्सिको सिटी, वहां पर लाइफ और भी ज्यादा बेटर है. वहां पे चीप एक्चुअली द थिंग्स आर क्वाइट गुड. यू कैन बाय द सेम प्रॉपर्टी लाइक इन 1/5 और 1/6 ऑफ प्राइस एज कम्पेयर टू मेक्सिको सिटी. मेक्सिको सिटी में प्रॉपर्टीज हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन बाय इन $1 million, $2 million. सो यहाँ पर बहुत कॉस्टली है मेक्सिको सिटी में फॉर एग्जाम्पल. तो but the thing is after working in universities for example in the research field the life is quite good. मैं नंबर नहीं दे सकता क्योंकि नंबर बहुत वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि विद दिस सैलरी व्हाट आई गेट हियर, और जो लोग जानते हैं इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, they are living quite happily actually. You can buy property, you can have your own house, you can have your own savings, you can live a very good life actually. Yeah. वेरी इंप्रेसिव यार. दैट इज लाइक ओवरऑल लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सिंगापुर में कंपेयर करते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पे घर खरीद ही नहीं सकता बंदा. तो ये जो आपको पर्क्स मिलते हैं लैटिन अमेरिका कंट्री में या फिर साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में या लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, दीज बेनिफिट्स आर अमेजिंग. हर कंट्री का अपना एक बेनिफिट रहता है. मतलब हर जगह की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, अपने लिमिटेशंस हैं. यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस ऑफ कोर्स. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग लाइक आई टोल्ड यू इज द लैंग्वेज बैरियर. इफ यू लर्न स्पेनिश योर लाइफ इज क्वाइट इजी. हाँ, यहाँ पर एक और चीज हमें देखनी पड़ती है. इवन द स्टेट्स इट हैपेंस, लोग बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं. तो हम कई बार फॉर एग्जाम्पल जब वी कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो कई बार डिफिकल्ट होता है. बट ऑफ कोर्स इफ यू नो कुकिंग तो उससे इजी रहता है बिकॉज यू गेट ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स, यू गॉट ऑल द लेंटिल्स फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग यू गेट हियर आल्सो. बीन्स आपको मिलते हैं, राइस आपको मिलता है, हर चीज मिलती है. सो ऑफ कोर्स इफ यू नो कुकिंग समटाइम इट्स वेरी इजी एक्चुअली. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि लैंग्वेज का, फूड का, सिक्योरिटी का. ऑफ कोर्स सिक्योरिटी आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है. यू कांट गो टू ऑल द प्लेसेस एट ऑल द टाइम्स. वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कर सकते हैं ऑफ कोर्स. सो दिस इज़ वंडरफुल. जो आपने जो डाइट के बारे में कहा ना, यूएस की डाइट मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगती है. मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, यूएस में जैसे कि मिल्क, हर जगह जीएमओ प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको खुद ढूंढना पड़ता है ये चीज़ें ऑर्गेनिक हो. यहाँ पे मुझे फूड बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, दूध यहाँ पे मुझे हजम नहीं होता. पर अगर हम मेक्सिको में जाए, जो मैक्सिकन कोक है उसे बेटर माना जाता है, वहाँ के दूध को बेटर माना जाता है. यहाँ पे दूध भी होमोजेनाइज होता है जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है. यहाँ पे यूएस में आके कई इंडियंस लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स मैंने देखा है मेक्सिको में उतनी नहीं आती इन टर्म्स ऑफ फूड. या मेक्सिको में ये बेनिफिट है बिकॉज अगर आप देखिए बीन्स हैं, जितना ये चीजें हैं, वेजिटेबल्स, अवोकाडो फॉर एग्जांपल, सब कुछ मेक्सिको से यूएस जाता है. तो नाउ यू कैन थिंक, हम जब यहाँ से प्रोड्यूस होकर यूएस में जा रहा है आफ्टर मेनी डेज और मंथ्स इटसेल्फ, तो वो उतना क्वालिटी नहीं रहता. बट मैं यहाँ जब आई एम लिविंग नेक्स्ट टू द फार्मर्स फॉर एग्जांपल, जहां पर वो उगा रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर सेलिंग यू आल्सो, तो वो एक चीज फ्रेश रहती है. That's what I was telling you. अगर आपको कुकिंग आता है, that's very easy and you can get the fresh vegetables, fresh milk also, fresh curd also. तो वो different चीजें आपको अवेलेबल रहती हैं of course. Yeah. एंड जिन्होंने मेक्सिकन फूड कभी खाया नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत इंडियन जैसे लगता है. राजमा चावल और थोड़ा बहुत चटपटा गुआकामोली, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब अगर मुझे किसी दिन इंडियन खाने का मन है तो मेक्सिकन मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Exactly. आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वी कैन गेट राजमा. हम सभी इंडियंस को ऑलमोस्ट पसंद आता है वो. चना फॉर एग्जाम्पल, यू गेट दैट थिंग. दाल आपको मिलती है, राइस आपको मिलते हैं, कॉर्न्स हैं, सभी वेजिटेबल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल्स हैं इंडिया वाली. तो मीन्स आप कर सकते हो सर्वाइव इजीली. इट्स नॉट लाइक कि आपको बाहर ही खाना है.
इन माई केस फॉर एग्जाम्पल आई डेंट नो कुकिंग व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम, तो मुझे सीखना पड़ा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, लर्न कुकिंग, and I found places where I can buy the stuff, for example. So now I know where I can buy fresh things, I can cook, so I am living very happily. And now I'm telling, now we have like more than 25 restaurants, Indian restaurants. There are some Punjabi restaurants and they are so good actually. So I'm so happy with that thing actually. Yeah. या मेक्सिको हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, मतलब इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर कोई 10 साल से पहले गया होता शायद वो फील नहीं कर पाता जो आप आज कर रहे हो। सो इट इज़ अमेजिंग। Exactly. Now the culture is different. अभी growth हो रहा है, industrial growth बहुत ज्यादा हो रहा है. And taking the opportunity, I would like to say कि लोग इलेक्ट्रॉनिक से आते हैं, कम्युनिकेशन से आते हैं, जो मेरी भी फील्ड थी पास में, और अभी भी मैं जो कर रहा हूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे रिसर्च. तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा यूएस गवर्नमेंट और मैक्सिकन गवर्नमेंट का ट्रीटी हुआ है, बिकॉज वी नो दैट अभी एक चिप शॉर्टेज है वर्ल्ड वाइड, और बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं चीजों के. इवन कार प्राइसेस फॉर एग्जांपल, दे हैव गॉन लाइक 5 to 10% इजीली. तो क्या हो रहा है कि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंटेल मैंने आपको बताया मैक्सिको में है, वी हैव जीई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, सभी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पर. तो वो क्या देख रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू राइट नाउ. सो मैंने आपसे पहले भी बताया था आई थिंक, बट यहाँ पे मैक्सिको में इस टाइम व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद यूएस कंपनीज, यूएस गवर्नमेंट, एंड दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी नाउ इन मैक्सिको. तो यहाँ पर इन द कमिंग ईयर्स सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है. So people who are coming from that background, for example, electronics, electrical, or those who want to do research in this field, बहुत ज्यादा अभी benefits मिलने वाले हैं. Even the jobs के लिए बहुत अच्छा आने वाला है culture within next coming few years, because US का main attention अभी मेक्सिको पे है. They want to do everything here. चिप के लिए आपको सिलिका लाना है, आपको सिलिकॉन बनाना है, आपको चिप बनाना है, आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है. So from the raw materials to the final product, they want to do everything in Mexico. तो अगर इतने बड़े स्केल पे जब होगा तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज एट द डिफरेंट स्टेजेस. इंजीनियर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एमबीए वालों के लिए, हर लेवल पे काम आएगा. देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल सही कहा। यूएस और चाइना की जो सेमीकंडक्टर वॉर हुई है जिसके कारण यूएस चिप्स अपनी चाइना को देना ही नहीं चाहता, उसका बहुत फायदा होगा. एग्जैक्टली. एंड मेक्सिको बगल में है बिल्कुल यूएस के, मींस इट्स अ बॉर्डर शेयरिंग कंट्री. तो अगर यहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ से आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, देयर आर डिफरेंट, बाय सी आल्सो, बाय बिग शिप्स आल्सो, क्रूज शिप्स आल्सो, आप प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं. और बहुत जल्दी पहुंचेगा यूएस में, बिकॉज अगर आप फ्लाइट से जाते हैं यहाँ से, आई थिंक द क्लोजेस्ट फ्लाइट इज लाइक 1.5 hour फ्रॉम मेक्सिको सिटी. तो अगर आप 2 घंटे में जब आप पहुंच रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी बेनिफिट फॉर बोथ कंट्रीज एक्चुअली. यूएस पे भी बेनिफिट में रहेगा और मेक्सिको भी इससे काफी बेनिफिट में होंगे एक्चुअली इन फ्यूचर. या ब्रिलियंट. एंड एक चीज़ पूछना भूली कि आपने स्पेनिश कैसे सीखी, मतलब आपने बुक ली, क्लासेस ली, सो हाउ डिड यू बिकेम सो फ्लुएंट. मैंने आपके वीडियोस देखे आपके रिसर्च लैब में, इतनी इतनी इम्प्रेसिव स्पेनिश की आई थॉट लाइक यू आर फ्रॉम मेक्सिको. एक सेकंड के लिए मुझे लगा. थैंक यू. नहीं, उस केस में देखिए, आई वेंट टू प्रोफेशनल स्पेनिश क्लासेस फॉर 2 days, पर वहां पर इतना नहीं हेल्पफुल था, एंड इट वाज क्वाइट स्लो. द बेस्ट थिंग इज टॉक टू फ्रेंड्स, टॉक टू योर प्रोफेसर, टॉक टू योर कलीग्स, टॉक टू योर कोलैबोरेटर्स, एंड वो एक मेन फैक्टर था. एंड देन वॉचिंग द स्पेनिश मूवीज फॉर एग्जाम्पल, और आई कैन वॉच द इंग्लिश मूवीज विद स्पेनिश सबटाइटल्स. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. And the thing is, I know many people, those who are living in Mexico for more than 10 years, 15 years, 20 years, they can't speak Spanish because unka ye ki they are closed, you know, they don't want to learn any other language. The main thing is your zeal. अगर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो इंडिया की कोई और स्टेट की लैंग्वेज हो या किसी अदर कंट्री लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप सीख सकते हो. You don't need any degree or something. You don't need high class brain or something, higher IQ or something. कुछ नहीं चाहिए. You should have the zeal, main thing, और लोगों के साथ open होना पड़ेगा. Once you are doing those things, you will learn for sure. So मेरे साथ भी वही था. Exposure, talking to people, watching movies. That's it. क्या बात है. दिस इज़ वंडरफुल एडवाइस, क्योंकि हम वी लर्न बाय डूइंग. आपने करके प्रैक्टिस कर करके सीखा. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, आप कोई फाइनल एडवाइस दोगे स्टूडेंट्स के लिए जो मैक्सिको में आना चाहते हैं? ओवरऑल उन्हें कोई भी चीज़ का जो डर आपको लगता है कि उन्हें होना चाहिए, अगर कोई पेरेंट्स किसी फैमिली का, किसी स्टूडेंट का अगर कोई पेरेंट देख रहा है, उन्हें कोई डर होना चाहिए बच्चों को यहाँ भेजने से पहले कि नहीं? देखिए, हर जगह का डर होता है हमेशा, ठीक है. आपको भी फॉर एग्जांपल यूएस में भी मास शूटिंग होता है यार. मतलब अगर यूएस में ये होता तो हर जगह हो सकता है. हर चीज
हर स्टेट, हर कंट्री, हर सिटी एक वो स्टेजेस रहती हैं, तो डर के हमें रहना पड़ेगा, दैट्स ट्रू। बिकॉज अगर हम डरते हैं तभी हम बचते हैं, आई वुड से। ठीक है, आपको पता है कि आप अपना सेफ्टी, यू आर टेकिंग सेफ्टी, यू नो प्रिकॉशंस कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो ऑफ कोर्स इट्स गुड। बट बीइंग इन द रिसर्च फील्ड वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, मेक्सिको इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर पेइंग यू, एक्चुअली यू डोंट हैव टू पे, दे आर पेइंग यू बैक, और आप अच्छे कोलेबोरेशंस बना सकते हो वर्ल्ड वाइड। तो आई थिंक इट्स ए वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इफ यू वांट टू स्टे बैक एट मेक्सिको, आप यहाँ पे रह सकते हो, और यू कैन गो टू अदर कंट्रीज आल्सो। सो आई थिंक वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपको इंजीनियरिंग के बाद पैसे कमाने हैं, my recommendation, go to industry, go to companies, because they don't want masters and phd, sometimes they want direct from the bachelor's level. Agar aapko something different you want to do, you want to help the world in some other way, for example, go for research, तो इस केस में आपको मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक करना पड़ेगा। एंड मेक्सिको ऑफर्स यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एक्चुअली। और यहाँ पे जॉब्स भी हैं ऑफ कोर्स। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको पैसे वाला जॉब लेना है या आपको रिसर्च करके कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। और वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स हमें अपने आप को पहले दिखाना है कि करना क्या है, हमारा क्या एम है, व्हाट वी वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, 15 years। हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एंड देन आई थिंक इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू बी इन मेक्सिको। So, thank you so much, Dr. Atit, and it was a pleasure talking to you. आपसे बहुत कुछ सीखा. I hope कि students watching this video उनको भी बहुत मदद हो and वो भी मेक्सिको को consider कर पाएं for their future education as well. And thank you so much. Sure, Hanu. Thanks a lot for the opportunity, and I'm also happy अगर कोई students को doubts है, for example, they want to come to Mexico, they want to go any other countries. अभी being in this field, I have that kind of experience. I'm also still learning. We have to learn every day. But अगर कुछ भी share कर सकता हूँ, they want to learn from me something, they want to, I don't know, they want to come to Mexico, they want to go any other country, I can help in those things also. Any suggestion, comments, I'll be very happy always. Yes, please feel free to comment down. Yeah, thank you so much.